Namaskar, good morning. Engineer Suraj Singh again to you to discuss with you to have a conference, one-way conference regarding Constitution of India, Bharat ka Samvidhan, a document under which our country, our people have been living. Very significant, very significant, and very significant for each and every citizen of ours. Everybody should know about this. Must be. No ignorance, no ignorance. Everybody has to know about this. Those who don't know, they are missing something, and those who know, they are happy that they know something. Both are there. That's why it's very important to know this one. Children, kids, youth, old, all. Bharat the Samvidhan for everybody. Everybody realize this point and learn it. Learn it to a practical angle, not to examination angle. It's very significant. And if you don't know, you don't you don't understand the country, which is very bad idea. You have to understand your country if you want to make future of this country. You have to understand this country. If you think you know everything, in fact you don't know everything. If you don't know your country, that's a problem. Bharat ka Samvidhan, a document which is so significant. Constitution of India, preamble. Again I am telling, we people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming dignity of individual and unity and integrity of nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. भारत का संविधान हम भारत के लोग निष्ठा से डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं और फैसला निकालते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि हम भारत देश को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य बनाते हैं और अपने नागरिकों के हेतु उनको देने के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, विश्वास तथा पूजा पद्धति की आज़ादी, बराबरी का पद हर एक के साथ और कितनी उसको चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी बराबरी तथा प्रगति देने के लिए, उन्नति देने के लिए भाईचारे को देश के सभी धर्मों के, सभी समाज के वर्गों के, हर व्यक्ति की इज्जत को, हर व्यक्ति के मान सम्मान को, देश की अखंडता को, देश की एकता को रखने के लिए एक साथ आज 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस नियम को, इस ताकत को, इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इसको कानून के रूप में परिवर्तित करते हैं और हम स्वयं इसको अपने आप को समर्पित करते हैं। हम भारत की जनता ऐसा करती है पूरे विश्व को बताने के लिए कि हमने अपने देश के लोगों को चलाने के लिए, अपनी भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के वंदे मातरम को भी अपनाया। एक वंदे मातरम वो था जो देश की आज़ादी के लिए था, एक वंदे मातरम ये है जो हमारे देश की जनता की आज़ादी के लिए है। इसको प्रेम की अगर वंदे मातरम भी कह दिया जाए, भारत माता की जय भी कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भारत माता की जय को शुरू करते हैं कोई कार्यक्रम, वंदे मातरम कह के हालात मचाते हैं,
तो ये भी एक वंदे मातरम से कम नहीं है। भारत का संविधान भारत माता की जय से कम नहीं है। भारत माता का संविधान ये भारत माता का संविधान है। भारत का तो कहने के लिए भारत माता अगर हम कहते हैं तो भारत देश का नाम है, इसलिए भारत का संविधान है। लेकिन ये वंदे मातरम से कम नहीं है, क्योंकि इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरा वंदे मातरम है। इसलिए हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India, Bharat into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of an individual and all individuals, and unity and integrity of nation on this 26th day in our Constituent Assembly, 26th day of November 1945, 949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. We all people of this country now available, and all those who shall come in future, assume that they also accept this, and that is what is this संविधान। आसान नहीं है समझना और मुश्किल भी नहीं है समझना। सोच है, वी हैव डेवलप कर रही है सोच। If you develop this kind of soch, if you develop this kind of thinking, this kind of belief, this kind of expression in your mind, you recognize your country, you recognize your nation, you recognize Bharat, you recognize India, that you are a part and parcel of this country, you are an integrated citizen of this country, you are a part dipped in fraternity of this country, you are a part of a share economic justice and political justice and liberty, and whatever has been endowed upon you to be a good citizen of this country, to be a good honor of this country, to be a good obligator of this country and accountable of this country, you shall be called Bharat citizen only when you are true. You are not a cheat, you are not a fraud, you cannot cheat your nation, you cannot cheat your public, you have to be honest. And if you are honest, you are sincere, you are dedicated, it is your own Bharat, your own family, your own everything. Only one family in our country, and that is Bharat. And we have to serve the whole world. We have to serve ourselves, we have to serve our people, we have to serve our communities, we have to serve our each and every person of this country on equality basis, on justice basis, in every case that fundamental right goes to that person. And if we don't do that, if we don't provide that fundamental rights, we talk against this one. We have to do everything by government. If government does, if judiciary does, if legislature does, if public does, everything should be conducted for compliance within this constitution, whatever has been enumerated, and that has to be understood first. And if we cannot understand that, we cheat ourselves, we deceive ourselves, we deceive our group, we deceive our family, we deceive our nation. And when we deceive our nation, it doesn't matter whatever oath you take in parliament seat, or whatever oath you administer being a president, or whatever oath you administer being a prime minister, whatever oath you administer being a chief justice of this country. If you don't comply with provisions as enumerated here in preambles and then included in articles, you are an anti-national and anti-constitutional person if you do not do that. If you comply with that, you are great. You are a family person of this country. You are a citizen of this country, bona fide citizen. Otherwise, you are a self-deceiver, a country deceiver, a national deceiver. You have to understand that very well. This this preamble is direction. This preamble is a guideline. This preamble is an order to citizens of this country that whatever has been contained, whatever has been infilled in 395 articles or whatever amendments and whatever is there, included and endowed upon each and every citizen of this country, must be complied with to an extent farthest possible and practical. You have to do that. And if you don't do that, you are cheating your own self. You are cheating yourself. You are cheating each and every person of this nation. Doesn't matter. If prime minister doesn't take care of this, prime minister is wrong. If president doesn't take care of this, president is wrong. If judiciary goes against this, judiciary is wrong. Everybody is wrong. If they don't worry, they don't concern about this. And who plan to replace these documents, they themselves are devils.
they themselves are cheat, they themselves are against this nation, because this document is a public document, only first public document in our country. This is not parliament document, this is not state assembly document, this is not prime minister document, this is not president document, this is not judicial document, this is document of public, direct public. Public devised this document, public adopted this document, public enacted this document, and public gave to itself this document for purpose of execution, implementation, and whatever can be done or followed up in times to come, in centuries and centuries and centuries. And that has been going on. This document is in full operation. Judiciary is there, legislature is there, executive is there, public is there, and all other institutions are there, and everything is there. And so far, they have been working very fine since 1950, but now there has been some deterioration. There is cause of obstruction among route of implementation of constitution, and that causes a clear problem, that causes an issue, very big issue that causes. And for example, latest update, latest problem, though our parliament approved triple talaq bill, instant triple talaq, yes, that is right, they passed it, but they passed it in a devil fashion. It's a devil work they have done. Lok Sabha passed it, Rajya Sabha passed it. They passed it for sake of approving, for sake of enacting, not for sake of examining reality of life. Lok Sabha is dominated by BJP and NDA. Rajya Sabha is also dominated by political parties, but there should be a difference. Lok Sabha is people of fools, while Rajya Sabha should be a house of intellectuals, of those who have vision. We can assume that. We can think we don't care for Lok Sabha because in Lok Sabha there are not expected intelligent people. They're expected those people who come for just by votes, not by intelligence, not by education, not by something else. And Prime Minister himself is not very well educated. He doesn't understand facts of life. He doesn't understand history. He doesn't understand politics. He doesn't understand economics. He doesn't understand science. He doesn't understand anything. Yet he is prime minister. Yet there are hundreds of MPs who maybe knowing nothing about politics, nothing about constitution, nothing about humanity, but they are representing people of this country. Because they are representing people of this country, we respect them, that they are honorable, but they should prove they are honorable. Okay, leave Lok Sabha. I'm not going to talk about Lok Sabha much, because Lok Sabha is a house of elected people, directly elected by public under Article 81 of the Constitution of this country. But I'm talking about those people in house of higher house, upper house of our parliament, that is named Rajya Sabha, House of Council. And those council means they should be important people, they should be elite people, they should have adequate knowledge, highest degree of understanding, highest degree of intellectualism, highest degree of analytical power, highest degree of having profile of vision. They should have good quality of vision, they should have complete analysis of whatever they agree or don't agree. But it is not happening. 250 people, MPs in house, upper house, they are doing same thing as lower house is doing, and that is unfortunate, really unfortunate. Those people must have different opinion, keeping apart party lines. They should work, they should think, but they are not doing justice to nation, they are not doing justice to themselves, they are not doing justice to law, they are not doing anything, and that's causing a problem. House, that is house, Rajya Sabha, August house of this nation. Above this there is no house, only there is court, there are other institutions parallel to that, but not above. Rajya Sabha does something which is against ethics, which is against society, it should be condemned. They passed one bill, that is instant triple talaq bill. Instant triple talaq bill is fine because this law doesn't exist. There is a law that is illegal already. It was case law declared by Supreme Court, and that law was required to be enacted. But that, in addition to whatever is required to enact it, they enacted that a person who has delivered, who has claimed three talaq, and talaq should be jailed for 3 years. Question arises, why? This was duty of all those councils, House, House of Parliament, House of Rajya Sabha,
to ensure whatever they did should be right. But they did not analyze anything. They did not calculate anything. They just depended on party lines just for sake of passing a bill. They voted out. This means they acted illegally. They acted abusively of their power, and they acted foolishly, they acted dufferly. What I can say, they didn't act as per their requirement, as per their ambition, that they are councils of this country, they are higher MPs, they did not work in that direction. They just, because they have to follow their party lines, they did it. Congress opposed this, many parties opposed this, whereas BJP and NDA, they did not oppose this. And this has happened. This means Rajya Sabha has also been politicized. It should never even politicize this Rajya Sabha. This is protector of Lok Sabha. This is practically politically protector of people of India's right. If they kill rights of someone, they kill rights of those people who do no crime. If there's a problem in divorce or Muslim person does that, there is no consideration that has happened, talaq has happened. If suppose I, being a Hindu or other person, that person applies for divorce, then why should that punishment not be given to that person, only to a person of Muslim community? Why this not applies? This should be condemned clearly, though they have passed it, but public has to ensure that this is wrong. If you have to grant three years punishment, then you should have granted it to each and every husband of this country who divorces as well. If someone files an application in court on the Hindu Marriage Act or on the Jain Marriage Act or under someone else Marriage Act, then that person should also be extended 3 years punishment. But you are doing only for a section of people out of 140 billion, in people who have only 10 to 15% population, and you don't like those people because you are from that party, from that RSS and from BJP. You hate those people, and that is why in name of that you are providing justice to that woman, those part of women who have been suffering, but you are not taking whole public into consideration. You are just doing partial job where from where you are designing how to get votes of that women community belonging to the Muslim community. That is what you have done. This should not have been like this. This is illegal. This is, though Rajya Sabha has passed, doesn't matter. It's Patthar pe Lakeer. Means we have to think on this. We have to analyze on this. Rajya Sabha MPs have become just chess, nothing else. They are counted in numbers now. They are not counted in power of intellectual, power of brilliance, power of, you can say, brain work. They are not working with brain. They are just working in numbers. They are counting numbers like these foolish people of Lok Sabha, they do. We have 233 criminals sitting in Lok Sabha, and they are making our life, we are writing our future, and we are happy that they are making, the criminals are making my future, and I should be happy that criminals are making my future. There is no problem at all to society. Same thing is Rajya Sabha, they are no more intelligent people. They are sitting just for sake of sake. Rajya Sabha is no more that honorable house that it should have been. So August of Rajya Sabha, if these people do same thing, how to think that things will move right way? Unfortunate it is. Our people are sleeping. Again I am saying, we people are sleeping. We cannot cause justice to someone who has not done any crime. If a Muslim person divorces 3 times, but that is illegal. That is not accepted. If I say even not even 3 times, 10 times, that is not applicable. That is not implemented. It's not talaq. Suppose somebody in angry mood says something, we say in fighting in other religion as well, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्या छोड़ देते हैं? Same thing applies to this religion. If person says he has done some crime, but this is not final talaq. Talaq has not been concluded. If no crime has been done, even if it was concluded, say, then it's not a crime. How it is crime? Supreme Court says that it's no law, it's no conclusion that crime that the divorce has been affected with. If divorce has been affected with, how do you decide? How do you conclude? How do you claim that talaq divorce has been done, has been conducted? If not has been conducted, what is meaning of this punishment? What is meaning of this punishment? I don't know. Rajya Sabha should have explained that. Those MPs who have voted in its favor must explain logic behind that. Why they approve this? I'm not asking opposition. I'm asking those people who are treasury benches, who are BJP people and BJP supported people. They have to explain why they have approved something which is not approvable.
but they shall not answer because they are Modi Bhakts. They are going. They want their positions intact in Rajya Sabha. They don't want to fight with some system. And when people stop fighting, that country has to go to seabed, ocean bed, and we are going to ocean bed. You are just doing injustice to some part of society, and that is not acceptable. I'm not going to repeat what politicians say, what other MPs of other parties says. So I'm not a politician, I'm not MP, and I have no value at all to speak again what they say. I don't care for what they say. I talk my mind, and I have to interact with your mind. My submission to you is that there should be complete logic, complete elaboration, complete, you can say, submissions, complete declaration, or you may say why this was done, but they shall not do it. Passing is their aim and they passed it. But is passing adequate? Just the question is, if someone is in jail, it doesn't matter whoever person is, he belongs to whatever religion, whatever community, whatever faith. You put him in jail. In jail means he has to remain in jail. And you are asking that you have to provide compensation to your wife, you have to bring up your child, you have to do everything. From where? Government officials shall pay them? Who shall pay them? No one shall pay them. Then how this is reactionary? How this is chemically correct? Where is the chemical biology, or where is the biochemistry, or where is the, you can say, there's chemical talk on this statute? This is complete nonsense. There is no equation at all. No left hand side, no right hand side, no equality among that. So how can you say something justified? I am not supporting Muslims and I am not opposing government. Question is, there should be logic. There should be no arbitrary management. There should be speaking management. Your act is not speaking. How shall you keep them survivable? You criminalized something which should not be criminalized. If suppose woman complains, she could complain under Article 498 about torture. There is another avenue. She could claim money, but here whom she will claim? The person who could pay, he is in jail. How shall he pay? Is it not a question? Is it not a psychological question? For 3 years, what shall she eat? Where shall she live? Even if she lives in a house where husband provided her, what shall she eat? Who shall pay? Shall husband's relative pay? Or public shall pay? Or government shall pay? Or she has to earn? What shall she do? This must have been answered. But no, we just approve it because we are in power. When you drink power in place of whiskey, when you drink power in place of cigarette, you are in same boat. Oh, this is my country, and whatever I do, shut up, don't say anything. I am Prime Minister, I'm leader of house. I shall do whatever I want to do. What hell you are? Who hell you are? Why you are telling me all this? Don't speak to me. I am right, and I am right. I am father of Hitler. I am grandfather of Hitler. What you are, nothing, and get lost, you Congress people and you all other people, opposition guys. Get out of here. Don't talk to me. This is conduct, this attitude of our government, this attitude of our Prime Minister. देश का जब बेड़ा गर्क होना होता है, ऐसे ही हालात होते हैं. अंधेर गर्दी चौपट राजा, है ना कहावत. अंधेर गर्दी चौपट राजा, वही हो रहा है. देश जिस तरफ जा रहा है, आप पब्लिक नहीं समझ पा रही है, क्योंकि आप लोगों में विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है. देश तबाह होने जा रहा है और हो रहा है. पहले आपने कंपनियों पर अटैक करते हैं, कभी रेलवे पे अटैक करते हैं, सामान बेचते हैं देश का बनाया जो बनाया गया पहले. अगर आप अपने घर की सब चीज़ें बेच देंगे तो आप कहाँ रहेंगे, ये आपको सोचना होगा. जब तक आपके पास दूसरा घर नहीं होगा, आप एक घर को बेच भी नहीं सकते. आपको बहुत कुछ सोचना होगा, लेकिन हम यहाँ नहीं सोचेंगे. आप किसी कम्युनिटी को तंग करना चाहते हैं तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप पावर में हैं. जब तक आप पावर में ही थे, आप तंग नहीं कर सकते. आज आप देश की पावर रख रहे हैं, देश की सत्ता पे समझते हैं कि आप देश के मालिक हो गए, देश के माँ बाप हो गए. यही नशा होता है सत्ता का, यही नशा होता है. आप समझते हैं जो कुछ हूँ मैं हूँ, बस. जब मैं आ जाती है किसी व्यक्ति में, तो व्यक्ति आदमी नहीं बनता, जानवर बन जाता है. आज देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति और कोर्ट भी उनके गुलाम बन चुके हैं.
देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री तो अपने आप को समझते हैं कि जो कुछ है हम ही हैं, हमें कौन हटा देगा, हम कुछ भी करेंगे इस देश में, हमें कौन कहने वाला है। कोई न्याय अन्याय उनके लिए मायना नहीं रखता है। समय ऐसा चल रहा है, देश किस तरफ जा रहा है शायद देश की पब्लिक तो क्या कोई भी नहीं जानता है। सब अपनी मस्त दुनिया में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिनके पास है मस्ती से सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, कोई नेशनल टूर कर रहा है, कोई मजे से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पैसा खर्च रहा है। और जिसके पास नहीं है वो भूखा मर रहा है। अगर भूखा नहीं मरेगा तो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, कुछ भी करेगा खाने पीने के लिए, और चोरी करता पकड़ा जाएगा। जो बदमाश है, जो पैसे वाले हैं, कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देश के ऐसे हालात हैं जिससे अराजकता आप कह सकते हैं। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो राजगद्दी में बैठे हैं, और जो राजगद्दी में नहीं बैठे हैं वो भूखे मर रहे हैं, और जो लोग मजे कर रहे हैं वो मजे कर रहे हैं। जब देश में कोई सिस्टम ना रह जाए तो ऐसा ही होता है। वही हाल आज हमारा है। कोई गलती हमारी है, हम सो रहे हैं, लोग जागते नहीं हैं। हम सिर्फ अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तो जाग जाते हैं, अपने काम पे जाने के लिए जाग जाते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए हम नहीं जाग सकते क्योंकि हम भारत के लोग हैं। तो बार बार कह के थक गया हूँ, अरे क्यों सोते हो इतना, कभी तो जागो। सोना सोना होता है, जागना जागना होता है। ये देश आपको पका पकाया मिल गया, पकी पकाई रोटी की खा गया, देश आज़ाद मिल गया। आपको पता नहीं आज़ादी क्या होती है। आपने डंडे नहीं खाए अंग्रेजों की पुलिस ने, आपको बर्फ के सिले पर लिटाया नहीं गया, आपको पीटा नहीं गया, आपको सताया नहीं गया, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से जाने से रोका नहीं गया, आपको बोलने से रोका नहीं गया। इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही रहा है, सब कुछ सब सही रहा है। आप ये बैठे हैं सोच के, आप नहीं जानते आज़ादी कैसे मिली होगी। आपने कल्पना भी नहीं की अभी तक कि आज़ादी कैसे मिली होगी। हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, वो जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया वो कैसे रहे होंगे, आपने नहीं सोचा। आप यही सोचते हैं पागल थे सब, बस पागल थे। गलत की गांधी ने, पागल था वो, पागल था भगत सिंह, पागल थे सारे फ्रीडम स्ट्रगल वाले, पागल थे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने आपके लिए अपनी जानें दी, अपनी शादियां नहीं की, अपनी फैमिलियां नहीं बनाई, कुछ नहीं लाइफ में देखा कि हमारे आने वाले समय में देश आज़ाद होगा तो हमारे आने वाली जनरेशन देखेंगी, जो बच जाएंगे वो देखेंगे। लेकिन आपको नहीं देखना कुछ भी। आपकी बला से इस देश पे दोबारा अंग्रेज आ जाए तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब देश के बारे में सोचते नहीं हैं, देश के बारे में आगे क्या होना चाहिए नहीं जानते हैं, आप देश के संविधान की वैल्यू नहीं करते हैं, आप यह भी नहीं जानते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या भला है, किस चिड़िया का नाम है, किस कबूतर का नाम है। अब मैं बहुतों से पूछता हूँ, हाँ सुना है कुछ होता है, वो क्या होता है उनको मालूम नहीं है, उनका कसूर नहीं है, इसमें मैं उनको कसूरवार नहीं कह सकता, क्योंकि ये शिक्षा स्कूल में देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी, वो हमारी गलती। लेकिन क्या करें अब। अरे जान लो भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, यही होता है ना, और क्या होता है। अगर मैंने कुछ पहले नहीं पढ़ा तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल यही है कि अब पढ़ लीजिए। उसके लिए आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको उसके लिए साइंस का टीचर रखना पड़ेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या किसी और सब्जेक्ट का आपको विद्या आपको टीचर रखना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ऐसा तो उसमें नहीं है। उठाओ पढ़ लो, पता लग जाएगा कि आपके अधिकार क्या हैं, आपकी प्रिविलेजेस क्या हैं, आपको क्या क्या कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम नहीं जानेंगे क्योंकि हम भारत के लोग हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आशा रखता है, लेकिन आप वो नहीं समझेंगे क्योंकि आपको समझना अच्छा नहीं लगता है कि भारत का संविधान आपसे क्या आशा करता है। कभी आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम लोग ऐसे हैं जो कुछ जानना नहीं चाहते। आप इतना भी नहीं जानना चाहते हैं कि आपसे देश क्या उम्मीद रखता है, भारत की पब्लिक क्या उम्मीद रखती है, और आप क्या उम्मीद रखते हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है जो संविधान मानता है। हमने अभी सोचा है, कुछ लोग जानते होंगे, आपने अगर संविधान पढ़ा होता तो आर्टिकल आपने पढ़ा होता। संविधान के पार्ट 4 में, संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 51A है, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। उसमें साफ साफ लिखा है हर नागरिक की ड्यूटी होगी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के हर नागरिक की ये कर्तव्य होगा। वो कर्तव्य क्या है सुन लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए, आपको थोड़ी शर्म भी आए, फीलिंग भी हो कि क्या हम इतना भी नहीं जान सकते, हम इतने पढ़ लिख गए हैं, इतनी डिग्रियां हमने ली हैं,
इतने कॉलेज गए हैं, लेकिन हमने ये जानना क्यों उचित नहीं समझा। देखिए इसमें क्या कहता है ये, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे संविधान को मानना, इसके हिसाब से काम करना, इसमें जो दिया है आइडियल्स दिए हैं, जो इसके अंदर दिए हैं, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना, हमारे देश की जितनी संस्थाएं हैं उनकी इज्जत करना, उनको समझना, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी इज्जत करना, हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी इज्जत करना। फिर ये कहता है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये फिर जोर देता है इस बात को कि उन आइडियल्स के जिनके पीछे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिनके पीछे कुर्बानियाँ दी गई, उनको जानिए, उनके लिए लड़िए, जिन्होंने हमारी आज़ादी के प्राप्त करने के लिए सोचा गया, जिनकी फाउंडेशन थी, वो स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया आज़ादी को देने के लिए। उन आइडियाज़ को, उन आइडियल्स को आप सोचिए, समझिए, उनको फॉलो करिए। उसके बाद कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर उठा के रखने के लिए हमारे देश की प्रभुसत्ता को, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी एकता को, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी को हमें होल्ड करना होगा, समझना होगा कि हम साथ कैसे रहेंगे। भारत के लोग, भारत के स्टेट्स, भारत के सब कुछ, इतने व्यक्ति, इतने सारे लोग कैसे साथ रहेंगे, हमें इसको ऊंचा रखना होगा। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सुरक्षा रखना देश की, सुरक्षित करना देश को, बचाना देश को, हमारे देश को बचाना, राष्ट्रीय सेवा की देने की कभी आवश्यकता पड़े तो देना, जब बुलाया जाए भी आपकी राष्ट्र की जरूरत है तो सामने आइए, वो करना। तो प्रोवाइड हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड amongst all people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to dignity of women, to provide harmony, एकीकृत करना, सबको शांति से रहने देना, एकता से रहने देना, भाईचारा बढ़ाना, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, शक्ति देना ब्रदरहुड को, भाईचारे को देश में, सारे लोगों के बीच में, और ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। हमारी जो सोच है धर्म के बारे में, भाषा के बारे में, क्षेत्र के बारे में, या धर्म के कुछ सेक्शंस को अलग के बारे में, उन सोचों को ख़त्म करना, उन्हीं के लिए छोड़ देना, अपने पास नहीं रखना। उनको एक रहने के लिए उनको ये समझाना कि धर्म वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं, आपकी व्यक्तिगत हैं, आपकी भाषा आपकी है, आपका क्षेत्र आपका है, लेकिन देश सबका है। ऐसे कर्मों को हटाना जो वुमेन की इज्जत को खराब करे। टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये कहता है हमारा कर्तव्य, हमारा संविधान, कि हमें क्या ड्यूटी हमारी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, हमारी संस्कृति में, भारत की हमारी वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में, जो भी हमारी पुरानी सभ्यताएं हमें मिली हैं, हमारी संस्कृति हमें मिली है, उसके संभाल के रखना, उसको अच्छी तरह से रखना, उसको समझना, उसको वैल्यू देना। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, वैल्यू देना हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, उसको संभाल के रखना, उस ऊंचाइयों में जो है, उसकी जो हाई ऊंची क्षमता है, जो ऊंची वैल्यूज़ हैं हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, and to have compassion to living creatures, रक्षा देना उस प्राकृतिक वातावरण की, उसको सुधारना, जंगलों को सही रखना, सुधारना, झीलों को सही रखना, सुधारना, नदियों को सही रखना, सुधारना, जंगली जीवन को सही रखना या सुधारना, और उनके लिए मन में शांति रखना, लिविंग जितने क्रिएचर्स हैं जो जी रहे हैं उनको मारना नहीं, संभालना, ये भी हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, विकास करना साइंस का, विज्ञान की, उसकी शक्ति का, मानव का, और हमारी जो प्रॉब्लम उनको समझने का, हमारी शक्तियों को सबको सुधारने का, ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस,
सार्वजनिक संपत्ति को संभालना, उसको सही रखना, तोड़ने नहीं देना, और हिंसा को नहीं मानना, उसकी कंडम करना, नशा हिंसा को नहीं अलाउ करना। To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. आगे चलते रहना, जबरदस्ती आगे बढ़ना, वो लाइफ की हर स्फेयर में, जो एक व्यक्ति का है या ग्रुप का है या पूरे देश का है, ऐसे काम जो आगे बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहे, ऊपर चढ़ता रहे, हमारी शक्तियों के साथ, हमारे एफर्ट्स के साथ, और हमें प्राप्ति दे, हमें अचीवमेंट करने दे, आगे बढ़ने दे। हु इज पेरेंट और गार्डन, हु इज ए पेरेंट और गार्डियन to provide opportunity for education to his child, or as case may be, or ward between age of 6 and 14। जो भी पेरेंट है, माता पिता हैं, जो भी गार्डियन है, उसको गार्ड करने वाले हैं ज़िंदगी में, वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए सोचें, उनको अवसर दें पढ़ने के लिए। बच्चे को जैसा भी हो, 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ने का मौका मिले। ये सारी हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमको करनी होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इन ड्यूटीज़ को समझना इतना मुश्किल नहीं है, खाली कागजों की बात नहीं है। इसमें समझना है कि आखिर ये क्यों लिखी गई हैं। ये इसलिए लिखी गई होंगी कि हम लोग लापरवाह हो गए थे, हम लोग समझते नहीं थे कि आज़ादी का मतलब क्या है, हम लोग समझते नहीं थे आज़ादी किसे कहते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है और आपकी ड्यूटी क्या होती है। हमने अधिकारों को समझा, हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा, हमने दूसरे अधिकारों को समझा, बाकी सब चीज़ों को समझा, लेकिन हम ये समझ नहीं रहे कि अधिकार तब मिलता है जब आप अधिकार के लिए पात्र होते हैं, जब आप उसके लिए अधिकारी होते हैं। आप काम नहीं करेंगे, आपको अधिकार कैसे मिल जाएगा? आप सेवा नहीं करेंगे, आप कुछ सोचेंगे नहीं, तो आपको अधिकार कैसे मिल जाएगा? ये वास्तु स्थिति है। इसीलिए 51A में ये डाला गया कि लोग पढ़ें, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ के लोग पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते होते तो ये बात नहीं होती जो आज हो रही है। यहाँ तो अपना हक, अपना धर्म प्रधानमंत्री भी नहीं निभा रहा, राष्ट्रपति भी नहीं निभा रहा, जहाँ तक हो सकता है जुडिशरी भी पूरा नहीं निभा रही, और टीवी वाले नहीं निभा रहे, कोई भी नहीं निभा रहा, स्कूल नहीं निभा रहे और अस्पताल नहीं निभा रहे, सब अपना धर्म नहीं निभा रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? उनसे कोई लेना देना नहीं है भारत के, क्या आपकी ड्यूटी है क्या नहीं है। उनको बस पैसे से मतलब, सैलरी से मतलब, जिसके इलाज करने करो, कोई सिफारिश वाला है कोई दूसरा इलाज करते जाओ अस्पताल में। एक एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि सारे ऐसा करते होंगे, सारे ऐसा नहीं करते, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम अपने हिसाब से करते हैं, देश का अपना समझ के करते हैं, देश में मिलने के लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो देश को लूट के खाना चाहते हैं, जिनको ना संविधान से कुछ लेना है, ना प्रियम्बल से कुछ लेना है, ना उनको इन हकों से कुछ लेना है, ना उनको 51A से कुछ लेना है, ना उनको किसी से कुछ लेना है। बस उनको हंगामा करना है, अपना देखना है और चलाना है। यही है देश में। Everybody has a right to duty. Everybody, just like everybody high rights for rights and privileges which are available under constitution of this country, under fundamental rights, under state and under whatever else. Everybody talks of rights and rights. Nobody talks of duties and duties. If you want to share some right, that right goes to you only when you do duty, you perform your work, whatever you are required to do, whatever constitution allows for you, and what is constitution doesn't allow for you. You have to think that way. If you cannot think, I will explain to you what duties we have, what we have to do. We have to respect our honors, our everyone, and we have to respect our nation, our society. But in that, you have to many other liabilities as well. You have to do that. But we are not doing that. That's a problem. That's a big problem. Well, my purpose was not constitution here. My purpose is something else. I was talking till now about various structures of our India, various structures of our governments and this. And I was reaching up to Nagar Palikaएं, which is part 9 of Constitution, and I will speak about Nagar Palika for purposes here now in Hindi, because in English I have done that in last video. In Hindi I am going to speak now, and it will be a little fast because I will not explain much better in Hindi. Yet I will speak about whatever is written in this, and you have to listen that if you want to listen. It is municipality, which is Article 243. They are saying that, but I don't know what that here stands for, why that is. Anyway, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आप विकसित न हो, के
समिति से अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। ख जिला में किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। गैर महानगर क्षेत्र से 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट है और जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में निश्चित करें। है नगर पालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नागरिक नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। नगर पालिका से अनुच्छेद 443 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। पंचायत से अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है। जनसंख्या से ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। मैं पढ़ता हूँ। जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चय की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। 243 है प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंध के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद को और किसी किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का और किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्देशित करे। इस अनुच्छेद में संक्रमणशील क्षेत्र लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र की उसमें जनसंख्या की सघनता स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजनों की प्रतिशतता आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्देशित करें। 243 एक खंड और 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति का लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागत समाविष्ट है। राज्यसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की प्रधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में नगर पालिका से राज्यसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं
अनुच्छेद 243 है कि खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, परंतु पैरा 1 में निर्देशित व्यक्तियों को नगर पालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा। 243 है, ऐसी नगर पालिका के 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों को से मिलकर बनेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत उस रीति की बाबत जिसमें कोई किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। जहाँ कोई वार्ड समिति एक वार्ड से मिलकर बनती है, वहाँ नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य या 2 से अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, वहाँ नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्यों में से एक सदस्य उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, उस समिति का अध्यक्ष होगा। 5 इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान मंडल को वार्ड समिति के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध कराने से निर्वाचित करती है। 243 ने प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हो रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्त वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अथवा उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करेंगे। खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में विनिर्देशित अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। 6 इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगर पालिका में स्थानों के या नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निर्वारित नहीं करेगी। 243 प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। परंतु किसी नगर पालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसे नगर पालिका का जो ऐसे संशोधनों के ठीक पूर्व कार्य कर रहा है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्देशित उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन खंड 1 में विनिर्देशित
उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके वितरण की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा। परंतु जहां वैध शेष अवधि इसके लिए कोई विधिवत नगरपालिका बनी रहती 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए इस विघटित नगरपालिका खंड एक के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विकसित नहीं की जाती। कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रायोजन के लिए तत्त समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता। परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कह दिया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगर पालिका का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निहारता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे निश्चितता के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन और संस्थाओं के रूप में क्रिया करने में असमर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी विधि में नगर पालिका की ऐसी शहरों के ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जो उनमें निर्वासित की जाए। निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कृतियों का पालन करना और ऐसी स्कीमों का जो उनके सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करना है। समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्व को जिन्हें अंतर्गत वे इतिहास नहीं अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी है जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विलय विषयों पर एक संबंध में है कार्यान्वित करने में समर्थ कराने के लिए आवश्यक हो। है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर शुल्क पत्थर और फीसें उद्ग्रहित या संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर शुल्क पत्थर और फीसों किसी नगरपालिका को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा वैसी शर्तों और निबंधों को अधीन रहते हुए समन्विष्ट कर देगा। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए
उपलब्ध कर सकेगा और नगर पालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमश प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपलब्ध कर सकेगा। विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और नगर पालिकाओं के बीच जो इस भाग के अधीन उन्हें विभाजित किए जाए वितरण को और सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के लिए तत्संबंधी भाग आवंटन करेगा। आवंटन हो ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारणा को जो नगर पालिकाओं को संबंधित की जा सकेंगी या इन्हें इनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में, नगर पालिका के ऋण वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही की स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। 243 यह किसी राज्य का विधानीय मंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसी लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्देशित राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त हुआ। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के सर्वेक्षण में विवश है। दोबारा पढ़ता हूँ। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों संबंध में उपबंध कर सकेगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल ने प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होंगे। ओके। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्रों को उसके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के
अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रतिनिदेश को और किसी राज्य क्षेत्र के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति ऐसे निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसे विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हो। फिर पढ़ता हूँ, इस भाग के प्रबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हो और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है और विधानसभा के प्रति निर्देश हो। परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उत्पन्न किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपरांतरणों से अधीन करते हुए इसका परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा इस भाग के उत्पन्न किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपकरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो यह अधिसूचना के निर्दिष्ट करेगा। आर्टिकल, इस भाग का कोई भाग अनुच्छेद 244 के एक में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों और उनके खंड में निश्चित जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको लागू नहीं होंगी। इस भाग की किसी चार बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा प्रवृत्ति परिषद के कृत्यों की शक्तियों में प्रभाव डालती। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्देशित किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। 243 यह है, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिला के एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात जिला योजना समिति की संरचना वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे, परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदनों में परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले नगर पालिकाओं और निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों का और संसद नागरिक क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।
जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को जिला योजना के संबंध ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समुद्दिष्ट किया जाए। प्रत्येक वह रीति जिससे ऐसी समितियों के वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएं। प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं का सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत स्थानीय योजना जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा पटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा दृष्टि करें। प्रत्येक जिला योजना संबंध का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती हो याचिका सरकार को भेजेगा। 243 येड है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित की पावत उत्पन्न कर सकेगा, अर्थात महानगर योजना समितियों की संरचना वह रीति जिसे ऐसी गलतियों में स्थान कर देगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखितों की बाबत उपलब्ध कर सकेगा, अर्थात महानगर योजना समितियों की संरचना वह रीति जिससे इस समितियों में स्थान भरे जाएंगे, परंतु ऐसी समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थानों या का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को संबोधित किया कृत्यों को कार्यान्वित किया आवश्यक समझे जाएंगे। महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित इस ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समुदिष्ट किए जाएंगे। ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व ऐसी समितियों का समुदिष्ट हेतु को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक जाए। ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समन्वयित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझाएंगे। महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य और ऐसी समितियों को संतुष्ट किया जाए। वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप कनेक्शन में निम्नलिखित को ध्यान रखेगी, अर्थात महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायत द्वारा न्याय की गठन योजना नगर पालिका और पंचायतों के सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत इस क्षेत्र की समानता स्थापित महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार गई योजनाएं नगर पालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थान एक योजना जल तथा अन्य
भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बढ़ाना अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षक है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्वकर्ताएं उस विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभव है तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय का अन्य संसाधन ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा निर्देशित करें। प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास जिसकी वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है राज्य सरकार को भेजेगी। इस भाग में किसी बात के होते हुए कि संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में पर्वत नगर पालिकाओं से संबंधित किया किसी विषय विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों को करता है। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में पर्वत नगर पालिका संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है जब तक सक्षम विधान मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता जिसमें से इनमें से जो भी पहले हो तब तक पर्वत बना रहेगा। परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान्य और सभी नगर पालिकाएं यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधानसभा विधान परिषद है उस राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि के समाप्ति पर बना रहेगी सत्ता में। 243 इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के लिए आवंटन सम्मिलित है किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं की जा सकेगी। किसी नगर पालिका के लिए कोई ऐसी निर्वाचन अजी पर ही प्रशासन प्रसंगत किया जाएगा तो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति के प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन वो बंद किया जाए अन्यथा नहीं। इसके बाद आती है सहकारी सोसाइटियां, वो बाद में देखेंगे। ये था नगर पालिकाएं भारत में संवैधानिक रूप, संवैधानिक अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनका। तो हमारे प्रोविजन कितने हुए? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट संवैधानिक। हमारे यहाँ राज्य सरकार संवैधानिक, उसमें परिषद भी है और विधानसभा भी। इसी प्रकार यहाँ की पंचायत संवैधानिक, हर लेवल की पंचायत संवैधानिक, नगर पालिका संवैधानिक। ये संविधान में दी हुई है, इनको छोटा समझने की भूल ना कीजिए। यही आपके लिए है, आपका भाग्य बनाने के लिए है। एक तरह से आप अपने फैसले खुद करें उस लिए है। नगर पालिका है और नगर पालिका में तो आप फैसले नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत में आप कर सकते हैं। आप विधानसभा में फैसले करेंगे, आपके जो वहाँ पर आपके उम्मीदवार हैं, जो आपके नामजद हैं, जो आपके
आपके कह सकते हैं जिन्होंने आपसे अधिकार लिया है कि हम जाके वहाँ काम करेंगे, आपने उनको अपने वोट से अधिकार दिया है। वोट को खेल ना समझें, वोट को आप खेल ना समझें। आरटीआई को सरकार ने खेल समझा, हटा दिया, डाइल्यूट कर दिया। वो ये नहीं समझते कि आरटीआई आखिर है क्या। गुस्सा आता है, सोच में पड़ जाता है मन, आखिर ये कैसी सरकार है, ये कैसा विधान हो गया है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक प्रश्न उठता है। जो अधिकार हमारा था वो आप छीनना चाहते हैं। आप उस डिपार्टमेंट को, उस आरटीआई के अध्यक्ष को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, आप उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो लोगों की बातें बताए कि सरकार ने क्या किया, कहाँ क्या किया। आप ये अच्छी तरह नहीं चाहते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जो चलना था, चलने देना था, उसको उल्टा अच्छा बनाना था और पावरफुल बनाना था, लेकिन आपने तो उसकी पावर की तोड़ दिया। मेहनत कौन करके गया, देश की कौन सोच के गया, लेकिन हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे, फिर पिएंगे, सोएंगे, दिन भर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, इधर उधर जाएंगे, और उसके बाद किसी फिल्म स्टार ने खुद गाना गा दिया आपके नापसंदीदा, तो आप उसके ऊपर शोर मचाएंगे, मेंढक है, मेंढक है, कुछ नहीं जानता, गधा है। आप भी तो उन गधों में गधे हैं। जब आप नहीं जानते कुछ, आप कैसे कह सकते हैं आप नहीं हैं। आप जब कुछ जानेंगे नहीं, इस डॉक्यूमेंट को समझेंगे नहीं, आप अपने अधिकार को भी नहीं समझेंगे। आप मत जानिए, आप गुलाम बने रहिए वोट देने के। मैं तो वोट देने को भी गुलामी समझ रहा हूँ आजकल, क्योंकि वोट देने का मतलब नहीं रह जाता अगर मैं ये नहीं जानता वोट क्यों देते हैं। आप म्यूनिसिपैलिटी का वोट भी देते हैं, आप विधानसभा का वोट भी देते हैं, आप लोकसभा का वोट भी देते हैं, आप पंचायत का वोट भी देते हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि वोट दें, आखिर हम क्यों दें, ये प्रश्न उठ रहा है मेरे दिमाग में। तो आपको भी उठना चाहिए, सबको उठना चाहिए। ज़्यादा सोते रहना ठीक नहीं होता, लेकिन यहाँ उठने की बात तो मत करो। आपका क्या जाता है, आप क्यों बोलते हैं कि उठता है कि नहीं वो, आप क्यों बोलना चाहते हैं कि वो अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम तो चलती हुई गाड़ी, चलती गाड़ी को हम रोक देते हैं, और जो गाड़ी नहीं चल रही तो धक्का देके चलाते हैं। हमारी आदत ऐसी है। जब ऐसी आदतें हो जाएं लोगों की, तो समझ लेना चाहिए सही नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। और उस गड़बड़ को रोकना हमारी ड्यूटी में आता है, हमारे कर्तव्यों में आता है। हम नहीं रोकेंगे तो कोई इंग्लैंड से नहीं आएगा, कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई विदेश से नहीं आएगा, कोई आसमान से नहीं आएगा उसको चेक करने के लिए, समझने के लिए। आप भारत के वासी हैं, आप भारत के मताधिकारी हैं, आपको सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो जो सोचता है वो उसका बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाएगा, अकलमंदी से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे, आप उसको मौका दे रहे हैं। क्या हर परिवार में आज की तारीख में ऐसे लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ लोग हर परिवार में पढ़े हुए हैं, और उनकी परिवार में पढ़ना खाली पढ़ना नहीं है, उनको आगे निकलना है, उनको अपने अपने लाइफ में जमाना है कि आखिर ये पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है। पढ़ना खाली नौकरी के लिए नहीं होता, पढ़ना बहुत चीज़ों के लिए होता है, ज्ञान वृद्धि के लिए होता है, दिमाग तंदुरुस्त करने के लिए होता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। तो हम नहीं कर रहे। हम बस एक ही बात जानते हैं, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारी ड्यूटी है कि 5 साल जाके वोट दे के आ जाएं, और वो भी याद ना देखें कि कौन उम्मीदवार खड़ा है मेरे क्षेत्र से, वो मेरे अच्छा है कि नहीं है, मेरी पॉलिसी के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये कोई देखता नहीं है। 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के टाइम में आप कितनी कसरत कर सकते हैं, कितने पेपर लिख सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, यह तो है। हम रोज क्यों पेपर लेके जाते हैं, आप अखबार भाना होगा किसी बात का, जिसमें अखबार की थाली है उसमें कुछ है, और भाने से क्या होता है, भाने से कुछ नहीं होता है। फैक्ट्स जानने चाहिए। वोट देने के लिए नहीं पैदा हुआ हम, याद रखिए, याद रखिए इस माइंड में। हम वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम वोट दे के अपने उन लोगों से जिनको हमने वोट दिए, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या काउंसलर हो या जो भी हो, हम काम लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप अगर सीट पे हमने आपको बिठाया, तो आप उस सीट का मान रखते हुए उससे हिसाब से काम करें, नहीं तो आपकी सीट हम फाड़ के फेंकना जानते हैं। हम भारत के वोटर हैं। हम नहीं चाहते कि हम बेवकूफ़ बने, हम बन रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, हम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों? फिर सोचिए, हर व्यक्ति सोचे भारत का,
क्यों नहीं सोचता? क्या प्रॉब्लम भाई? मैंने बहुतों से बात कर रखी है, इसी देश के लोगों ने बात की है, कोई भी से बात करो, बूढ़ो खासों से, अरे भैया क्या हो गया, मोदी 5 साल आ गया तो क्या हो गया, इसे और देख लेते हैं। अरे भाई मोदी कैसे आ गया, वोट तो आपने किसी और को दिया था। बस यही बात आ जाती है। कोई चोर बन गया, कोई डकैत बन गया, कोई ईवीएम लेके भागने वाला बन गया, कोई प्राइम से झूठ बोल के बन गया, कोई 15 लाख दे के चला गया, कोई जॉब दे के चला गया, कोई गरीबी हटा के चला गया, कोई कुछ करके चला गया। झूठों पे झूठ, झूठों पे झूठ, झूठ के राजा, झूठों के राजा, झूठ बोलने के मालिक इस देश के प्रधानमंत्रियों से, हाँ जो भी रहे हैं, जिन्होंने भी चीटिंग किया पब्लिक के साथ, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जिंदों को तो मैं कह सकता हूँ, मुर्दों को नहीं कह सकता हूँ, कि अपनी दिमाग खोल के रखो। भारत के पब्लिक ने आपको नहीं बनाया है। पिछली बार भी अगर आप जीत के आए तो अभी भाई इस बार कोई तीर नहीं मार लिया, आप चीटिंग करके जीते हैं, मशीनों की हेराफेरी करके जीते हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी झूठी में रख के जीते हैं। ऐसी जीत को हम जीत नहीं मानते, ऐसी जीत को हम लूट खोस मानते हैं। आप भी लुटेरे हैं, अगर वो लुटेरे थे, अगर वो लुटेरे थे तो जेल क्यों नहीं गए? इसका मतलब आपने झूठ बोला था, आपने एक हवा फैलाई थी कि ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है। इसको चोर कह दो एक बार, तो चोर 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 करते रहो, तो चोर बन जाएगा बेचारा, चोर रहा हो या ना रहा हो। ये है हमारी प्रॉब्लम देश की। वोट हम देते हैं बिना सोचे समझे, ना हम संविधान जानते हैं, ना म्यूनिसपैलिटी को नहीं जानते, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं जानते, अपने घर परिवार को नहीं जानते, अपने देश को नहीं जानते, अपने प्रियम्बल्स को नहीं जानते, हमारे क्या करना है उसको नहीं जानते। कब जानेंगे? आखिर कब? 72 साल हो गए, ज़्यादा भी हो जाएंगे। आप नहीं पैदा हुए तो उस टाइम मानते हैं, लेकिन अब तो पैदा हुए हैं आप 18 साल के होंगे या 20 साल के होंगे या 25 साल के होंगे। अब तो आपने चोरी कर ली, क्यों नहीं की? क्वेश्चन है कि नहीं है? यही प्रॉब्लम है, हम लोग समझते नहीं, कुछ नहीं समझना चाहते, हम दूसरे पे फेंकना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जिसको बना दिया मिनिस्टर वही काम करे, हमें कोई चिंता नहीं, हम ये चाहते हैं। यही कमी है, हम चेक नहीं रखते। अरे हमने दे दिया ना वोट, अब 5 साल बाद देखेंगे, जब आएगा फिर देखेंगे। यही कमी हमको मार रही है, यही चीज हमको नुकसान दे रही है। हमने उसको मालिक नहीं बनाया, देश का नौकर बनाया है, नौकर। और नौकर काम करता है कि नौकर काम नहीं करता है, ये देखना मालिक का फर्ज होता है। हमारी सिटीजन की हैसियत से वो भी उतना ही मालिक है जितने हम। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, जहाँ तक एमपी होने की बात है, पीएम होने की बात है, हमको चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बैठाए हुए सीटों पे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए, जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो पछताएंगे, पहले पछता रहे हैं और पछताएंगे। कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वोट को वोट मत समझिए, वोट को हथियार समझिए, हथियार। वोट खाली एक कागज का टुकड़ा नहीं है, एक मशीन का बटन नहीं है। वोट है आपकी तलवार, वोट है आपकी बंदूक, वोट है आपकी पिस्टल, वोट है आपका पत्थर। वोट वो शक्ति है जिससे आप नेता का सर फोड़ सकते हैं। वोट वो शक्ति है जिससे आप अपने देश का भविष्य बना सकते हैं। वोट वो शक्ति है जिससे आप अपने देश का भविष्य भी तोड़ सकते हैं। वोट वो शक्ति जो आपके समाज को हिला सकता है, आपके देश को हिला सकता है, पूरे विश्व को हिला सकता है, पूरी संस्थाओं को हिला सकता है। वोट वो शक्ति है, इसको आप फ्री में मत गंवाइए, इसको आप 2000 रुपये में मत बेचिए, शराब की बोतल में मत बेचिए, कंबल में मत बेचिए, झूठे वादों में मत बेचिए। चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन में रहा हो, उससे आप प्रश्न कीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे आपको पूछने का हक है। अगर तूने चोरी करी तो क्यों करी, किसके लिए करी, कैसे तूने पैसा हमारा चुराया, कैसे तूने हमारी बनी चीज को बेच रहा है, कैसे तूने झूठ बोला था कि मैं 15 लाख ला के दूंगा, कैसे तूने कहा था कि मैं 2 करोड़ जॉब हर साल दूंगा, कैसे तूने ये वादे किए थे कि मैं काला धन ला के दूंगा। कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो चीज? हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं देना है, हमको देश में झगड़ा कराने के नाम पे वोट नहीं देना है, हमको भारत माता की जय वंदे मातरम कहने के नाम पे वोट नहीं देना है, हमको इस दो देश की तोड़ने वाली शक्तियों को समझना है। हमको बेवकूफ नहीं बनना है, लेकिन हम बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम सोने वाली संस्थान हैं, हम सोने वाले लोग हैं, हमारे अंदर गंभीरता नहीं है। यही हमारी समस्या है।
हम खाना पीना सोना जानते हैं, हम शादी करके बच्चे पैदा करना जानते हैं, हम अपने परिवार में रह के अपने परिवार को आगे बढ़ाना जानते हैं। हमारे परिवार से दो परिवार दूर आग लगेगी तो हम जाना नहीं चाहते, हम उसको रोकना नहीं चाहते, हम उसको बुझाना नहीं चाहते, कह देंगे पानी नहीं मिला समय पे, कुछ भी बहाना मार देंगे। यही समस्या है हमारे देश की। हमारा संविधान कहता है हम सब भाईचारा रखते हैं, एक है, इंटेग्रेटेड है, सब कुछ है, लेकिन हमारी गली में भी हम एक नहीं है, हमारी किसी दुकान पे भी हम एक नहीं है, हमारे घर के अंदर भी हम एक नहीं है। हम समझना नहीं चाहते कि राजनीति क्या कहती है, हम समझना नहीं चाहते कि हमारे मिनिस्टर और हमारे नेता क्या बकवास करते हैं, वो क्यों झूठ बोलते हैं, वो क्यों गलत बातें करते हैं। हम नहीं जानते लोकसभा में क्यों बकवास होती है, क्यों जय श्री राम होती है, क्यों अल्लाह अकबर होती है। हम नहीं जानते कि हमारी लोकसभा में इतने क्रिमिनल्स क्यों आ गए, इतने अपराधी क्यों आ गए, कैसे आ गए। हम नहीं जानना चाहते, हम कुछ भी नहीं जानना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि राज्यसभा में जिनको बैठाया है वो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार कैसे हो गए, वो देश के बारे में सोचते कैसे नहीं, वो खाली शोर क्यों मचाते हैं, वो खाली वोट क्यों देते हैं, वहां पर हाँ हाँ ना क्यों ना क्यों करते हैं। क्या वो इसी बात के लिए बैठाए गए हैं वहां पर, क्या लोकसभा में भी इसी बात के लिए बैठाए गए हैं। अगर हमारी उम्मीदवारी वो नहीं कर सकते, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, हमारी बात को लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुंचा सकते, तो हमें क्या जरूरत है उन सबकी। अगर हमारे एक प्रधानमंत्री है, सारा काम करना है तो बाकी सबको हटा दो, हम सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, फिर संविधान को बदल डालो। हमें नहीं चाहिए वो प्रोविजन जिसमें लिखा है कि आपको एमपी चुनना है, हमको फिर वो प्रोविजन डाल दो कि हमको प्रधानमंत्री चुनना है, और इन 550 को और उन 250 को हटा दीजिए, फेंक दीजिए। हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, उनको जो खा रहे हैं पी रहे हैं हमारे पैसे पे और काम नहीं कर रहे, चमचागिरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, चमचागिरी कर रहे हैं पार्टी की, चमचागिरी कर रहे हैं किसी की। अरे आपको कर्नाटक में चुना, आपको वहां पर कांग्रेस के लोगों को चुना, आपको जेडी के लोगों को चुना और पैसे खा खा के चले गए, इसलिए कौन जिम्मेदार है। एक अगर एमएलए 50 करोड़ खा जाता है, एक एमपी 100 करोड़ खा जाता है, 75 करोड़ खा जाता है, किसके पैसे हैं आखिर में। तो क्यों खाया जाता है, कैसे खाया जाता है। क्या हमने सीट को उनको इसलिए वजह था कि क्या किया, दूसरी पार्टी से ब्लैकमेल करके पैसे ले लेना, वो आपको पैसे दे देगी और आप वहां से गवर्नमेंट चेंज कर देना और पार्टी आपको निकाल देगी। ये सब क्या ड्रामा है। इससे क्या देश की तरक्की होगी, इससे क्या समाज की तरक्की होगी। चुनाव आदमी अगर बिक जाता है तो ऐसे आदमी की तो गर्दन काट देनी चाहिए, ऐसे आदमी को शमशान भेज देना चाहिए। हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। धोखा कैसे दे सकता है वो, हमको हमने चुन के उसको भेजा है। जब तक वो दोबारा हमारे पास आएगा नहीं तब तक के लिए वो हमारा आदमी है। बेशक उसके बाद वो किसी और पार्टी में चला जाए, बेशक उसके बाद चुनाव ना लड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 साल के अगर हम चुना है तो 5 साल तक तुमको हमारा गुलाम रहना पड़ेगा, हमारा तुमको उम्मीदवार रहना पड़ेगा, हमारा तुमको एमएलए रहना पड़ेगा, हमारा तुमको एमपी रहना पड़ेगा। नहीं तो आपकी पिटाई होगी, आपको लातें पड़ेंगी, आपको पत्थर पड़ेंगे। ये होना चाहिए लेकिन नहीं है। नेताजी को नमस्कार, आओ नेताजी हार पहनिए, आओ नेताजी ये कीजिए, आओ नेताजी वो कीजिए। पीछे पीछे जा रहे हैं नेताओं के, जैसे नेता हमारा बाप बन गया। अरे जूते मारने चाहिए। कोई नेता आता है तो खड़े हो जाते हैं, आओ नेताजी। अरे किस बात के लिए खड़े हो जाते हैं। पैसा खाता है हमारा, टैक्स लेता है हमसे, सब कुछ करता है हमसे, सर्विस कर हमारी। तेरे इज्जत करने के लिए हम तुझे वोट नहीं देते, हमारी इज्जत करा के हमको पता कि तूने क्या किया। नहीं बताता, कोई नहीं बताता। पब्लिक को बेवकूफ बना के रखा, पब्लिक बेवकूफ है। पढ़े लिखे पहले बेवकूफ है, बड़े बड़े इंजीनियर बेवकूफ, बड़े बड़े डॉक्टर बेवकूफ, बड़े बड़े सर्जन बेवकूफ। इस देश में बेवकूफों का मेजोरिटी है, बेवकूफों की यहाँ पे राजगद्दी है। सब बेवकूफ बने हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हम डरते हैं, हम अपने लिए डरते हैं कि मुझे कुछ जॉब से ना निकाल दे, मैं सरकारी आदमी मुझे कुछ कह ना दे कोई, मैं प्राइवेट आदमी मेरी जॉब की को प्रधानमंत्री ना कह दे कि साहब को निकाल दो। इतना डर, अरे इतना डर तो अंग्रेजों के समय भी नहीं था। आपको तो आवश्यकता है तो ऐसे राज की जब अंग्रेजों का राज हो, और ये राज तो उससे ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज ने तो खाली कहा था कि हिंदू और मुसलमानों बांट दो इस कंट्री को। आपने हिंदू मुसलमान से बांटा नहीं, आपने तो जातों में बांट दिया, आपने तो सबको लड़वा दिया, फौज को भी बांट दिया, आपने सबको बांट दिया। फौजी को आपने चुनाव नहीं लड़ने दिया। आप चाहते नहीं कि कोई भी शक्ति ऐसी आए जो आपका विरोध करे, जेल में डाल देते हैं आप। आपका सिंपल सा फार्मूला है, जो आपके खिलाफ बोले उसका गला काट दो, चाहे जेल में डाल के काट दो, चाहे उसका नुकसान करके काट दो, या उसकी मुकदमा करके काट दो, या उसको कुछ भी करा हो उसको काट दो, निकाल दो वहां से, ताकि आपके खिलाफ कोई बोले नहीं।
आप लीबिया के गदम गद्दाफी हैं, आप इराक के सद्दाम हुसैन हैं, आप एक हिटलर हैं, हर नाम आपको दिया जा सकता है। सद्दाम हुसैन भी यही किया करता था, लीबिया का गद्दाफी भी यही किया करता था कि मुझसे सब कुछ लिए जाओ, मकान लिए जाओ, पैसा लिए जाओ, पढ़ाई लिए जाओ, सब कुछ लिए जाओ, लेकिन मेरे खिलाफ बोलो नहीं। वो कम से कम देता तो था, रोटी तो खाते थे आप, मकान में तो रहते थे आप, पढ़ाई के लिए विदेश को जाते थे आप, सारी फैसिलिटी मिलती थी आपको। अगर उसके बाद उसका मेरे खिलाफ नहीं बोलो तो डर नहीं इस बात का, कम से कम दे तो रहा है, हमको आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ तो दे भी नहीं रहा है, तो ले रहा है। कोई बना के गया कंपनियां ये बेच रहा है, कोई बना के गया रेलवे वो बेच रहा है, जो भी बना के गया हमारे पूर्वज ये बेच रहा है। ऐसा सरकार, लुटेरी सरकार क्यों बेच रहे हैं आप? आपकी शक्ति नहीं है, लाखों मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप उसको बना नहीं सकते। वो जो खरीदेगा वो क्या चाहेगा उस कंपनी को, वो भी तो इम्प्रूव करेगा उसको, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? आपके अंदर चोरी है, आपके मन में डकैती है। आप चाहते हैं 100 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच दिया जाए, और जो 95 पैसे का उसको फायदा होगा 40 आप ले लें और 55 वो ले लें, ये आप चाहते हैं। 60,000 करोड़ आपके वजह से चुनाव में लगे, 27,000 करोड़ आपके थे, कहां से आए आपके पास? इतना महंगा चुनाव आपने करवाया, पैसा तो गरीब का है, वापस तो वही आपसे लेंगे, और आपसे वापस लेने का मतलब पैसा हमारा आपके पास था, आपने उनको दे दिया, बात तो वही है। किस बात की ईमानदारी दिखाते हैं आप? बस बात को काटने के लिए तलाक का बिल ले आओ, RTI का बिल ले आओ, उस बात को काटने के लिए उसका बिल ले आओ, इस बात को काटने के लिए उसका बिल ले आओ। यही संविधान है क्या? यही सरकार होती है क्या? इस बात को सोचना बहुत गंभीरता से है, नहीं तो हम मिट रहे हैं, देश खत्म हो रहा है। ये देश उस गर्त में जाने वाला है, उस समुद्र में जाने वाला है जहां नीचे बेसाल्ट की कचरा है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। हमारा भी तेल दुनिया वाले निकाल लेंगे इस देश का, देख लेना वही होगा। लेकिन यहाँ कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है? आज हम लोग उस स्थिति में बैठे हैं, सो रहे हैं। अगर दोबारा अंग्रेज आ जाए, कहेगा मैं यहाँ राज करने बैठा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, हम कहेंगे आइए स्वामी जी, आइए आइए, अतिथि महोदय आइए आइए, बैठिए, खाना खाइए, लस्सी पीजिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, हम आपको सेवक भी देते हैं आपके पैर दबाने के लिए। हम उस कौम के हैं, हम उस मिट्टी के बने हैं, कमीनी मिट्टी वो, झूठी मिट्टी वो, जिसमें पानी नहीं, जिसमें खून नहीं, आज उससे हम बने हैं। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी देशभक्ति की, भारत माता की जय। भारत माता को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उसकी जय के नारे लगा के उसकी भी बेइज्जती करते हैं। वंदे मातरम क्या कि अपने आप को बेशरम बनाते हैं। हम उस देश में हैं। I am really sorry to say that we people are not following what Constitution says. This principle that preempt all aims that Constitution has provided to us, we have condemned all that because we are a sleeping society. Our leaders are useless. From president to all down, all are useless. They are not caring for this country. Lok Sabha is not working for requirement. Lok Sabha is full of criminals. And Rajya Sabha should be full of intelligent people. They are not working intelligentsia. They have no visions. They have analysis and doing nothing. They are just as same as Lok Sabha. They are counting numbers of heads in Lok Sabha, and Rajya Sabha also counting number of heads. They are not applying their minds. They are not applying in the brain and nothing. They are not doing as per requirement with their payment. Purpose of they were elected to Rajya Sabha. They are not doing that. That's the problem with this country. They are not doing our jobs, they are not doing our duties, they are not doing our responsibilities, they are doing nothing at all. It is required by law, which is required by our hearts and conscience and mind, which we should do. We are not doing public service, we are doing services. We are sold people, we are sold MPs, we are sold MLAs. MLAs charging 25 to 50 crores for being sold to BJP. Somebody is charging 100 crores and they are leaving seats, going out. It's happening in this country. They were elected for this, but go to that assembly and be sold and then resign. That's all. They should be kicked out, this head broken, and all that should be done with them. This is a weapon we should use, a weapon of war, and they should be kicked out. Next time they should be thrown over. But we are not doing that. That's the problem of this country. And they're calling this country Bharat Mata Ki Jai. We don't know what Bharat Mata is. We don't know what's Vande Mataram. This constitution itself is Vande Mataram. This constitution itself is Bharat Mata. We are not understanding that. We don't care for constitution. We care for my family. We care for my kids. We care for my bride. We care for money. We care for myself only. I'm not concerned with this country. I may be educated. I may be professor. I may be doctor, engineer, leader. Leaders are all criminals. Forget that. Professors are not criminals. Engineers are not criminals. Doctors, they're all sleeping. The engineers are not caring for quality at all. They are doing all rubbish quality. Doctors are charging high money from patients.
Lawyers are looting public. You cannot go to Supreme Court to file a case because you have to pay 3-4 lakhs. This is happening. Nobody is interested in country. Everybody is interested in self-interest, and that is what's happening in this country. And with this, I close this because it's too much, and I'll talk next time about further issues of constitution as well as country's current affairs in politics and others. And if I have spoken something wrong, I apologize because facts, facts require anger, require anguish, and I hate those MPs who are not working as MPs, who are working as heads of prime minister or heads of government. They are titular heads. Their heads are counted. Their minds are not counted. They should use mind, but they are not using mind. They are using just to win, and that's it. If Lok Sabha MP doesn't think, if Rajya Sabha MP doesn't think, they are animals, I should say. You are not sitting there as representatives of government. You are not sitting there as representatives of political parties. You are sitting there as representatives of public of this country. And if you don't analyze the requirement of public or wishes of public, you have no right to be called MPs, but animal MPs. And that's it. You are animals in that case. You are not human being. Sorry for that. For all I am saying, MPs, MLAs, or whoever there is, we elected animals and they are sitting there. We are bringing up animals. We are paying for animals. We are not paying for humans. We are not paying for MPs. If they are MPs, they should take part in debates. They should think of, and they have a right to speak against Prime Minister also if he's from BJP. What's the problem? You are member of parliament for us, not for Prime Minister. You are member of parliament for Congress. You are for us, not for Congress. You are public representative. You are not representative of Congress. You are not representative of BJP. You are not representative of someone else. You are representative of public of this country, and you are not taking care of public. You are taking care of what Modi would say, what Rahul would say, what Sonia would say, what Chan. This is weakness of this country, and you have spoiled constitution of this country. With that, thank you very much for your kind attention, kind time, and I'm closing this video. Jai Bharat and Jai Constitution and Jai public of this country. And that's it.